और आइए बात करते हैं चुनाव की। जी हां, दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन था। आज सभी पार्टियों के नेताओं, जी हां, सभी पार्टियों के नेताओं ने एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं गुजरात में पहले चरण में चुनाव के बाद दूसरे चरण के लिए तमाम दल पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में लगातार दूसरे दिन रोड शो किया है। प्रधानमंत्री का यह रोड शो शाम 6 बजे शुरू हुआ, जो दरियापुर, जमालपुर, बापूनगर 3 विधानसभाओं से होकर गुजरा। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में जनसभा से पहले रोड शो किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट के सरसपुर तक तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री मोदी ने तय की। रोड शो के बीच प्रधानमंत्री मोदी मां भद्रकाली के मंदिर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री रोड शो में सर्किट हाउस में सभा स्थल पर सड़क मार्ग से पहुंचे। इस दौरान सभी संख्या में मौजूद लोगों ने सड़क पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। तो वहीं गुजरात चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया है। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि पहले चरण में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी। लोग एक ही बात कर रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस पर मोदी ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरदार सरोवर का काम रुकवाने की कोशिश की, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया उस पूरी परियोजना को बनाने। रिकॉर्ड तोड़ी ना कहते, આજે પણ વિશાળ સંખ્યામાં આપ આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા છો। હું હૃદયથી આપનો આભાર માનું। ભાઈઓ બહેનો, મારા માટે ચૂંટણી પ્રચારનો આજે છેલ્લો દિવસ છે। તમારા માટે તો હજુ કાલે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે, પણ મારો આજે છેલ્લો દિવસ છે। આજે રાત્રે અમદાવાદની સભા કરીને પછી હું ફરી પાછો તમે જ્યાં મોકલ્યો છે કામે લાગી જઈશ। પણ આ ચૂંટણીમાં ગઈકાલે જે મતદાન થયું છે કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને દક્ષિણ ગુજરાત, એમાં કોંગ્રેસે જ નક્કી કરી દીધું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી જશે। ગઈકાલે ચૂંટણીનું પહેલું દોરનું મતદાન પૂરું થયું। 89 બેઠકોની ચૂંટણીનું મતદાન થયું, પરંતુ આ છાપાવાળા મારા કરતા વધારે સમજે અને હવે તો દેશભરના નાગરિકોએ સમજી ગયા છે કે કોંગ્રેસ જ્યારે ચૂંટણીના 2 દાડા પહેલા કાગા રોડ ચાલુ કરી દે, ઈવીએમ 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 ઈવીએમમાં ગડબડ, ઈવીએમમાં ઢીકણું, ઈવીએમમાં ફલાણું, એનું કારણ શું ભાઈ? આ કોંગ્રેસ વાળા ઈવીએમ ઉપર તૂટી પડે એનું કારણ શું? કે એમને ખબર છે કે હવે ઉચાળા ભળવાના છે ભાઈ, હવે કાંઈ પત્તો પડે એમ નથી, અને કોંગ્રેસને હાર દેખાય એટલે પછી ઈવીએમ ઉપર ઠીકરું ફોડે। આથી ચૂંટણીમાં મોદીને ગાળો દેવાની અને મતદાન આવે એટલે ઈવીએમને ગાળો દેવાની। ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસના આ બધા ખેલ હવે આ દેશનો બચ્ચો સમજી ગયો છે। પહેલા ભાઈઓ બહેનો, આ કોંગ્રેસ પાર્ટી આપણા ગુજરાતમાં શું કર્યું? એણે જાત જોડે લડાઈ, એક જાતને બીજી જાત જોડે, એક ગામને બીજા ગામ જોડે, શહેરને ગામડા જોડે, જિલ્લા જોડે, ગુજરાતને સૌરાષ્ટ્ર જોડે। લડાવો લડાવો લડાવો, ભાગલા પાડો, અને એના કારણે આપણું ગુજરાત ભાઈઓ બહેનો કમજોર થતું ગયું, નિર્બળ થતું ગયું।
વિકાસની બધી બાબતમાં આપણે પાછળ પડી ગયા અને એનો લાભ એવા લોકોએ લીધો છાસ વારે ઉલ્લડો થાય તથા તક નહીં ભાઈ કર્ફ્યુ એ રોજની વાત હતી કે નહીં આપણું ખંભાત અવારનવાર સાહેબ મુસીબત આવતી હતી કે નહીં આણંદ બચતું હતું પેટલાદ બચતું હતું આ જ કામ કારણ એકતા વેર વિખેર કરી નાખી હતી અંદર અંદર એવા લડાયા હતા કે આવા તત્વો એનો ફાયદો લેતા હતા પરંતુ 20-25 વર્ષમાં ગુજરાતે જે એકતાનો મક્કમ નિર્ધાર કર્યો અને એકતાના કારણે ભારતીય जनता પાર્ટીના પડખે ઉભે રહી અને એકતા માટે વોટ આપ્યા અને 20 વર્ષમાં જુઓ ભાઈ સ્થિતિ બદલવા માંડી કે ના માંડી આ બધા રંજાડવા વાળા બધા લાઈન પર આવી ગયા કે ના આવી ગયા હુલ્લડો બધા બંધ થયા કે ના થયા कर्फ्यू गयो कि ना गयो शांति एकता सद्भावनाનું વાતાવરણ બન્યું કે ના બન્યું બધાનું ભલું થવા માંડ્યું કે ના થવા માંડ્યું અને રાજ્યનું કામ બધાનું ભલું કરવાનું હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ રાજ્યને ફાયદો થયો કે ના થયો ભાઈઓ બહેનો આ એકતાના કારણે જાતિવાદથી ઉપર ઉઠીને વિકાસને ભર્યા આજે ગુજરાત देश भर के अंदर नवी ऊंचाई पर पहुंची हुई है। तो गुजरात के इस चुनावी रण पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। हमारे सहयोगी जिगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगर, हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और वो गुजरात की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए वो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो गुजरात की नब्ज है और वे मुद्दे गुजरातियों पर बड़ा असर कर रहे हैं। जी जिगर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम आपको संपर्क करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं और उन्हें देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है। जिगर, आपकी आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी, लेकिन अब आप जवाब दीजिए। जी, मैं कह रहा हूं कि गुजरात की जनता को हर वक्त जो चाहिए वो शांति प्रिय जनता है। उनको अच्छा रोजगार चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए और इनका तो मेन एजेंडा ही विकास का रहा है। उन्होंने इस बार भी कहा कि आपके जिंदगी के और आने वाले 25 साल आपको स्वर्णिम बनाने, उत्तम से उत्तम बनाने हो तो आपको भाजपा के कमल को वोट देना चाहिए। उन्होंने गारंटी देते हुए कहा कि मैं उज्जवल भविष्य की गारंटी दे रहा हूं कि 25 साल बाद गुजरात कैसा होगा, आप उनके विजन को समझिएगा। उन्होंने बोला गुजरात कितना सशक्त होगा, कितना समृद्ध होगा, कितना दिव्य होगा, कितना भव्य होगा, कितना और ज्यादा विकसित और मजबूत होगा, ये इसके लिए आपको मतदान करना जरूरी है। आजादी के अमृत काल को भारत को नई ऊंचाई पे ले जाने का काम सिर्फ गुजरात कर सकता है और गुजरात की बड़ी भूमिका रही है। तो इनके लिए गुजरात को और ज्यादा विकसित करने के लिए आपको भाजपा के कमल को वोट देना ही पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो तिरंगा है आज सुरक्षा की गारंटी बन गया है। उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र में रहने के बाद भी क्या क्या काम किया उन पे भी फोकस किया है। आज हम समझाते हैं कि कल 54 किलोमीटर का जो रोड शो था उसके बाद आज अनप्लान और एक रोड शो हुआ, भद्रकाली माता का दर्शन करके पूजा अर्चना के माता जी के साथ अर्चना करी। तो कहीं ना कहीं जो शहर के साइड, क्योंकि अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो 2 हिस्सों में है, पूर्व अहमदाबाद, पश्चिम अहमदाबाद। तो जहां पे भी इर्द गिर्द वाले लोग जो खास तौर पे जहां भी सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी को कंफ्यूजन है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस वाली सीटें थी, मुस्लिम वर्गों का कहीं प्रभुत्व ज्यादा था, वो सारी सीटें आज कवर की है क्योंकि वो चाहते हैं कि अहमदाबाद और गांधीनगर की मिला के 21+5 जो 26 सीटें हैं उनमें मैक्स टू मैक्स अहमदाबाद की सीटें और गांधीनगर की सीटें वो कवर करे ताकि मध्य गुजरात का पूरा जोन है जो ज्यादातर अहमदाबाद बड़ौदा पे डिपेंड है उसमें बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट आ पाए। अहमदाबाद के सरसपुर में आज जनसभा के साथ संबोधन भी किया और बहुत सारी ऐसी बात की जिस तरह से आपने बताया। वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी इलेक्शन में, किसी भी चुनाव में, जिगर वो आपने बता दिया, कार्यक्रम बता दिया, लेकिन किसी भी चुनाव में कुछ मुद्दे होते हैं जो ज्वलंत होते हैं और उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जनता की सोच घूमती है और वही मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में वो कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि कुछ जगह तो मतदान हो चुका है, बाकी जगह जो बचा हुआ है वहां पर कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता को महसूस हो रहे हैं,
जनता उन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करने वाली है? जी, जनता के लिए इस बार सबसे बड़ी परेशानी जो रही है, जिन मुद्दों की अगर आप बात कर रहे हो, तो महंगाई और रोजगार को लेकर बहुत सारे सवाल है। तो लोगों से जब जानने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ये भी बोला कि ये सारे सवाल तो है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का कंसिडरेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ा है, वो भी लोगों ने नजर में डाला है। डबल इंजन सरकार की बात जो मोदी जी कर रहे हैं बार बार, उनको लेके भी लोगों का कहना था कि बात तो ठीक है, अगर बीजेपी वहां और इधर होगी तो राज्य को बड़ा फायदा होगा, ये भी लोगों का कहना था। और तीसरा, लोगों ने ये भी कहा कि चलो हम महंगाई को लेके अगर उनको वोट ना भी करें तो सामने इतना कोई बड़ा ऑप्शन नहीं हमारे पास। ये सारी चीजें सामने आई तो कुल मिला के यही चीज सामने आ रही कि बीजेपी श्रेष्ठ ऑप्शन के तौर पे आज भी जनता के लिए, खास तौर पे अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत जो प्राइम सिटी है गुजरात के, वहां लोगों का आज भी मानना है कि भाजपा से ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। हालांकि महंगाई को लेके लोगों की परेशानी है, लेकिन लोग साथ में ये भी देखते हैं कि जो डेवलपमेंट गुजरात का हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है और जो दिशा, एक विजन जो है, वो सिर्फ बीजेपी के पास है और उसके लिए मोदी को ही लोग रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। और तो मोदी पे एक भरोसा आज भी गुजरात की जनता को कायम है। जिगर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने बताया कि 54 किलोमीटर का रोड शो पहले था और एक रोड शो आज है जो फिर से शुरू हो गया, यानी कि मां भद्रकाली के पहले 20 किलोमीटर का, और दर्शन किए मां भद्रकाली के, और उसके बाद फिर से रोड शो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है। मुझे लगता है, क्योंकि आप इसे ज्यादा करेक्ट करेंगे, मुझे लगता है कि किसी भी देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं अब तक, उन प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा लंबा रोड शो करने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि अब तक के प्रधानमंत्री की अगर बात करूं तो कोई ऐसा स्पीकर नहीं था जिनका एक प्रभाव जनता पे था। आपने देखा होगा कि मोदी की सभा चाहे कहीं पे भी हो, बिहार से हो, यूपी हो, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गुजरात में, तो उनसे लोगों का एक कनेक्शन रहा है। जहां पे भी गए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी लोकल बातें की कि लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाए। ये तो गुजरात है, होम पिच है, 27 साल का अनुभव है भाजपा का और 20 साल खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गली गली, चप्पे चप्पे के बारे में उनको पता है कि यहाँ क्या चीज लोगों को पसंद है, कौन सी नर्व्स वो दबा सकते हैं, किस बारे में बताएंगे तो लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादा रहेगा। इन सबके बीच में उनको ये भी पता है कि रोड शो के अंदर गुजरात में हर जगह पे उनको बहुत रिस्पॉन्स मिला है। ये तो चलो पीएम बन चुके, जब वो सीएम थे तब भी वो रोड शो ऐसे ही करते थे और जहां जहां रोड शो किया वहां रिस्पांस मिला। उनको देखने के लिए लोग तड़प रहे थे, उनके पीछे जा रहे थे, तो उनका एक कनेक्शन था लोगों के साथ। उनको पता है कि अल्टीमेटली इस बार भी चेहरा वो खुद ही है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की भी अगर बात आएगी उनको खुद को ही मैदान में उतरना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तो रोड शो से, क्योंकि हर जगह पे जनसभा, संबोधन या रैली पॉसिबल नहीं था, ये एक रोड शो में पूरे अहमदाबाद को उन्होंने कवर कर लिया और इसीलिए लोग धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि लोगों से एक कनेक्शन जो एक नेता का होना चाहिए वो मोदी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का अभी भी मोदी और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इस बात को इन शब्दों में भी बयां किया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो ज्यादातर समय अपना दिल्ली में देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में देते हैं, लेकिन आज भी गुजरात और गुजरात के लोग इनके दिल में बसते हैं और शायद यही उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो उनके बीच इतना लंबा रोड शो कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें हाथ हिलाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही मोदी है जो गुजरात का है और आपके बीच में। बिल्कुल आपने बात सच कही। देखिए मैं आपको 1 महीने अगर पहले ले जाऊं तो 1 महीने पहले एक दुखद घटना हुई थी, मोरबी की पुल की घटना, जिसमें कई लोगों, 134 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जब मोदी वहां गए थे तो वहां सबसे पहले लोगों को यही बताया कि 42 साल पहले जब वो पूरग्रस्त हुआ था मोरबी, तब भी वो संघ के कार्यकर्ता थे और लोगों की बड़ी मदद की थी उन्होंने। 21 साल पहले 26 जनवरी 2001 में बड़ा भूकंप आया था, तब भी मोरबी में बहुत नुकसान हुआ था, तब भी वो लोगों से मिले थे और इस बार भी वो मोदी वहां गए थे। तो कहीं ना कहीं वो एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं हर अच्छे बुरे टाइम में, मैं गुजरात से हूं, गुजरात की वजह से यहाँ हूं, मैं आपका आभारी हूं और गुजरात की जनता के साथ हमेशा मैं रहूंगा। ये बार बार वो जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच जहां होता है उनकी हर सभा में, हर बातों में आप देखोगे तो डेवलपमेंट से बातें शुरू होती है और इमोशनल पॉइंट से वो कनेक्ट करते हैं और उसके बाद बात को खत्म करते हैं ताकि लोग अच्छे से ज्यादा उनको पसंद कर पाए। और ऐसा ही हो रहा है आज भी, जिस तरह से आपने बताया, उन्होंने लोगों को यही बताने की कोशिश की कि आपने उनकी सभा देखी होगी, ज्यादातर वो गुजराती में ही बोलते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि जहां जहां गए उस एरिया के बारे में,
खास तौर पे वहां के जो कैंडिडेट है उनके बारे में, उस एरिया के जो एमपी है उनके बारे में, उनका नाम देके बोलते हैं कि उनके साथ मिलकर कई बार क्या काम किए क्या नहीं। जैसे सूरत में वराछा में बार बार उन्होंने CR पाटिल का भी उल्लेख किया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को बताने की कोशिश करें कि हमारा संगठन मजबूत है, केंद्रीय नेता जो है, हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, वो गुजरात से कनेक्टेड है, गुजरात के नेता आप लोगों के लिए तैयार है और हम सब मिलकर विकास का काम गुजरात के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक भरोसा मिल पाए कि पूरी सिस्टम सिंक्रोनाइज है, संगठन पूरा एक मिला हुआ है और यही सरकार है जो लोगों से एक प्रॉपर कनेक्ट होकर लोगों की समस्या पे काम कर सकती है। बिल्कुल जिगर, और चूंकि चुनाव का समय है, आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से संपर्क में रहना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अभी भी एक रोड शो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनका क्या कार्यक्रम है? देखिए, अभी तो कोई प्लान उनका फिक्स नहीं हुआ है। जैसा आज के रोड शो काफी अनप्लान था, लेकिन जिस तरह से एंड में प्लान बना, आपको मैं बता दूं, बड़ौदा में जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो है, उनका जो रोड शो था वो 3 घंटे लेट वहां पहुंचे थे और आधे शो से ही निकल गए थे और वो अहमदाबाद रवाना हो गए। तो अभी आगे का प्लान, एकदम कॉन्क्रीट प्लान बीजेपी की ओर से कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे जनता का संपर्क करने का, जनता से संबोधन करने का, चाहे वो रैली हो, रोड संबोधन हो, रोड शो हो, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मध्य गुजरात अपने आप में जरूरी है, जहां सबसे ज्यादा मार्क्स आते हो, अच्छे से आते हो, उसको तो वो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में अगर थोड़ा बहुत भी डैमेज हुआ तो डैमेज कंट्रोल के लिए मध्य गुजरात, और मध्य गुजरात के लिए अहमदाबाद बड़ौदा सबसे मुख्य प्राइम सिटी उनके लिए रहेंगे। बिल्कुल, और यही कारण है कि अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बड़ौदा में अमित शाह लगातार रोड शो कर रहे हैं और उस रोड शो के जरिए लोगों तक अपनी उपस्थिति भी पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जिगर का, जो इस पूरे मामले में हमें जानकारी